Good morning, students. Dear students, in graph or in graphical representation, we have studied about distance time graph to obtain speed. How speed will be obtained? So the slope of the distance time graph gives the speed. One thing is still left, remember, that is how distance will be measured. So we will discuss after some time. Next, that is displacement time graph, means distance time graph से जो quantity आया that is speed, उसका corresponding quantity, vector quantity, that is velocity. तो हमने लास्ट वीडियो में वो दिखाया, आपको समझाया. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. टुडे वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. फॉर व्हाट पर्पस? व्हाट इज द पर्पस एक्चुअली फॉर टुडे? इस वीडियो का पर्पस ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, सो दैट वेलोसिटी इज vector quantity. So velocity is positive, negative as well as zero. For the zero velocity, we have studied in the previous video, and here I am going to give you positive velocity as well as negative velocity separate wise, means separate graph, and some rules I will also give you. And again I will give you one more graph for the positive and negative velocity will be in a single graph. See here, case 1, one reading I have taken, that is the displacement time graph. Table is there, time is in second and displacement is in centimeter. If an object moving, so that in zero time its displacement will be 0. In time interval 1 second, displacement will be 10 cm. Time interval 2 seconds, displacement will be 20 cm. As well as in and so on. For the time interval, for the time 7 seconds, displacement will be 70 cm. This is the table. Now, draw the graph. So, for the graph, we have taken here that is on x-axis time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds. We have demarcated here. And on y-axis, that is displacement in cm, that is marcation is uniform, that is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 cm, and graph is, we have plotted the graph. For your convenience, I have given you two joining graph. Then after that, I have not shown the others point to be joined. It is up to you, and I hope that you have understood it very well. Means in time 1 seconds, that is displacement will be 10. So one perpendicular here from here, this is the points, and so on. Now from graph you calculate the velocity. So here velocity equal to displacement by time. Displacement is 10 cm, and in time 1 second, that is 10 cm per second. One more calculation we will do, that is v equal to d by t, that is in 20. In 2 seconds, that is 20. 20 by 2, that is 10 cm per second. And we conclude, what we conclude? That the velocity will be 10 cm per second. Velocity will be uniform. This is a straight line.
time displacement time graph will be a straight line, so the velocity will be uniform. Next to that, velocity will be positive. Here that is positive. Okay? This is the conclusion we have concluded here. Now, see the second graph. So before seeing the graph, we have taken one calculation, that is again time and displacement. In time 0, that is 70 cm displacement. Time 1 second, that is 60 cm displacement. Time 2, that is 2 seconds in 50 cm displacement, and so on. In time 7 seconds, that is displacement will be 0. One very important thing, कभी कभी आप लोग पूछते हैं, आप लोग बहुत ईगर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, नादान भी हैं, पूछते हैं कि सर ये 0 टाइम में कैसे 70 में आ गया। मान लीजिए कि आप कार से मूव कर रहे हैं, आपका जो मूवमेंट है टू द इंक्लाइंड स्पीड और वेलोसिटी। इंक्लाइन का मतलब धीरे धीरे बढ़ना, इंक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि सीधे हम ले रहे हैं कि ऊपर की ओर जो है सीढ़ी की तरह चलना, नहीं। इंक्लाइंड स्पीड मान लिया हमने काउंट नहीं किया, लेकिन जहां से आपका मैक्सिमम स्पीड हुआ यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 0 से मैक्सिमम तक भी जा सकते हैं, अब मैक्सिमम से धीरे धीरे 0 में भी जा सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम से 0 की ओर अगर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम से जो नीचे की ओर आइएगा, तो हम टाइम इंटरवल जब मैक्सिमम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। अब उसको लेकर के हमने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से देखिए कि 0 पर इसको फॉलो करिए, इस टेबल को। 0 टाइम सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 70 है, यानी 0 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 70 है। ऐसे मार्क करिए, 0 में यहाँ 70 है, 1 में 60 है, 2 में 50 है, आप देखते चलिए। 3 में आपका यहाँ 40 है, ऐसे अगर करिएगा, ठीक है, लाइकवाइज। और चलते चलते 7 सेकेंड्स में आपका 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये है वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी कर जाता हूँ। एक्चुअली वेलोसिटी होती क्या है कि डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1 अपॉन d2 माइनस d1, ये हुआ वेलोसिटी का। d बाई d तो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो होगा, एक डिस्प्लेसमेंट ही होगा, टाइम का डिफरेंस भी एक टाइम ही होगा, इसलिए d बाई d हमने किया। लेकिन सवाल उठता है कि इस ग्राफ पर अगर आप आइए कि सर वेलोसिटी हम कहां से दें, तो देखिए 0 पर जो था वो 70 है, 1 पर जो है वो 60 है, तो ये मतलब 0 टाइम इंटरवल में आपका क्या हो गया कि 70 है, और 1 टाइम इंटरवल में दैट इज 60 है। तो ये टाइम इंटरवल का डिफरेंस 1 माइनस 0 होगा, और 1 में कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट 60 माइनस 70 होगा। इसको ऐसे समझिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने वही करा है कि 60 माइनस 70 अपॉन 1 माइनस 0, दैट इज माइनस 10 बाई 1, दैट इज माइनस cm पर सेकेंड। एक आया। दूसरा हमारा है कि दूसरे क्वांटिटी के लिए या दूसरे रीडिंग के लिए हमने लिया, और वो है हमारा कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दूसरे डिस्प्लेसमेंट में लिया कि 50 माइनस 60, यहाँ देखिए 50 माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 1, ये भी माइनस 10 cm पर सेकेंड आया। अब यहाँ आने पर इसको आप कंक्लूड करिए, फर्स्ट कंक्लूड करिए कि वेलोसिटी विल बी माइनस 10 cm पर सेकेंड। देखिए ये माइनस 10 cm पर सेकेंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में माइनस का अर्थ डायरेक्शन होता है, मैथ में माइनस का अर्थ 0 से छोटा होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये माइनस 10 cm पर सेकेंड हुआ। दूसरा, उसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो हो रही है आपकी यूनिफॉर्मली डाउन हो रही है 10 cm पर सेकेंड से, ये कंक्लूजन आया। और तीसरा कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। एक आप पिछले वीडियो में 0 देखा है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव
दिखाना है। एज ए टीचर हमारा काम है कि आपको ये चीज को बता देना, और मैं पूरी तरह से सिलेबस में हूँ। और उस दिन एक आप लोगों के उससे क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं तो अपने स्कूल के प्रति डिवोटेड हूँ, तो इस लाइन को मैं जनरली इस वीडियो में एक ही लाइन आपको बता दूंगा। देखिए, जब ग्राफ जो पढ़िए ना सिर्फ वहीं पर रहिए, क्योंकि ग्राफ में हल्का सा भी डाइवर्शन होगा ना, कंफ्यूजन बहुत सारा आ जाएगा। पहले आप अपने सिलेबस के ग्राफ पर पूरी तरह महारत हासिल करिए, फिर आप इधर उधर के ग्राफ बनाइए। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वेलोसिटी आ गई, और एक और ग्राफ मैं देने जा रहा हूं, और वो ग्राफ है कि एक ही ग्राफ में, ये तो हमने दो रीडिंग से पॉजिटिव और निगेटिव हमने निकाल दिया, एक ही ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए, कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंक्लूड करने के लिए कहा जाए, कैसे कंक्लूड करिएगा, कहां पॉजिटिव होगा, कहां निगेटिव होगा, तो मैं आपको वो भी जो है अब आपको वो दे देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन a single graph for positive and negative cases, how the velocity will be positive and negative, so that we have taken this displacement time graph. See here, मैं एक एक करके बता देता हूं। x axis belongs to time axis in seconds, y axis belongs to displacement axis, that is in centimeter. See, टाइम एक्सिस पर 1 to 14 सेकेंड्स का मार्किंग खींचा हुआ है। एक एक करके इसको देखिए। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का 10 cm, 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का 20 cm, 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का 30 cm, 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का 40 cm, 5 seconds में displacement object का 50 cm, and 7 second displacement object का है 70 cm। ये यहाँ पर, और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए तब हम लोग आगे देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। 8 सेकेंड्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट घटकर के 60 हो जाता है, 70 से 70 cm था, 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 60 होता है, 9 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 50 होता है, 10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 40 है, 11 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 30 cm, 12 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 20 cm, 13 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 10 cm, and 14 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट that is 0। अब इससे आप कंक्लूड करिएगा, आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेशन करके। ये मैंने तरीका आपको पीछे बताया है, मैंने इसको बताया है कि आप कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ जब वो तरीका आपको मालूम है तो आप निकाल भी लीजिए, और नहीं तो आप कैलकुलेट करने से बेहतर है ग्राफ के नेचर को देखिए। जो 2 लाइन लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप सबसे पहले यहां से 0 to 7 इस जगह पर के ग्राफ को एक ग्राफ मानिए, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, और ऑन आफ्टरवर्ड 7 to 14 सेकेंड्स में 7 के बाद जो टाइम आएगा मींस डेल्टा टी टाइम के बाद वो घटना स्टार्ट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो ये हमारा वेलोसिटी घट रहा है। तो यहाँ क्या करिएगा, एक लाइन में बता देता हूं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसको लाइन भी मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए, ये एक्यूट एंगल है, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ यहाँ है, ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस के साथ अगर ये एक्यूट एंगल बना रहा है, मैंने लिखा है एक्यूट एंगल, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। और यहां के बाद अगर आप देखिएगा
तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, तो वेलोसिटी हमारी निगेटिव होगी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है ही, आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर एक्यूट एंगल बनाए टाइम एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव जो हमारा होगा वेलोसिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाए तो वो निगेटिव वेलोसिटी होगा। तो आपका ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ ओवर होता है, अर्थात हमने 2 सेट का काम कंप्लीट किया है, और वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना, दूसरा स्पीड कौन सा पार्ट देगा वो निकालना, और एक और बचा हुआ है जो इससे नहीं निकलेगा, अर्थात डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं निकलेगा। डिस्टेंस वो जब भी निकलेगा तो किसी दूसरे क्वांटिटी से आएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपने निकाला वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ये भी आपने देख लिया। अब वेलोसिटी में एक नई चीजें थी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो है वो वेलोसिटी निकालना जरूरी था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वो भी बता दिया, अलग अलग करके बताया और उन सबको इकट्ठा करके बताया। तो मोर और लेस हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो जर्नी है यहीं पर ओवर होता है। अब हम लोग आगे जो अगले वीडियो में हम लोग देंगे, मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में, आप देखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ को मैं लेके आऊंगा। स्पीड टाइम ग्राफ से क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ से एक चीज आएगी, मैं यही बोल देता हूं, डिस्टेंस निकलेगा वो मैं निकालूंगा। जस्ट अकॉर्डिंगली हम लोग जो है स्पीड टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसको मैं लेकर आऊंगा। उससे क्या निकलेगा, तो वहां जो चीज निकलेगा मैं बताऊंगा। मैं इसमें अभी ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूं, तो इस वीडियो में आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताएंगे। सर